Hello here, good morning. So today we will discuss about the SAP PM configuration and I'm going to show you. This is our configuration note. Yesterday we had complete up to here goods movements for order. So today basically we will discuss about these things. Today we will discuss about costing data for maintenance and service order. So in costing data for maintenance and service, there are three different type of node are. One is a maintenance costing variant, define valuation variant, and after that assign costing parameter result key analysis key. Okay, so these three are the basic nodes related to costing data for maintenance and service. After that, we will do configuration for availability, material, and PRT and capability. Okay, so now I'm going to open my SAP. This is how I have opened my SAP, and after that I will go through the T code SPRO. Oh, sorry, SPRO. Okay. After that we will go through SIP reference IMG. Here we will try to find out our configuration node, plant maintenance and customer service. There are uh, configuration node as a maintenance and service processing. In maintenance and service processing, we will go through the maintenance and service order. And after that, we will go through the function set and setting for order type. Here we will do configuration. After that, we will go through costing data for maintenance and service order. So here I will click on this. After that, we will go through the maintain costing sheet. So for your knowledge, I want to tell one thing. कि कॉस्टिंग सीट जो होता है ना, कॉस्टिंग सीट जो होता है ये FICO कंसल्टेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है. इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन FICO team. They will decide and they will create costing sheet because in FICO module we can define costing sheet. So it is a additional setting in our PM module. Okay. So कोई भी अगर हम कॉस्टिंग के थ्रू अगर जाते हैं बेसिकली तो यहाँ बहुत सारे कॉस्टिंग है लेकिन वी कांट फाइंड इट कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड वन. बट आपको मैं बता दूं कि ये क्या है. ये कॉस्टिंग जो है ये टोटल ही मतलब FICO वर्क है. और हियर यू कैन सी दे हैव मेंटेन समथिंग. ओके. मटेरियल ओवर OH, production cost, manufacturing OH, cost of goods manufacture, administration OH, sales overhead, so cost of goods sold. So ये जो ओवरहेड कॉस्ट होता है ना वो यहाँ कॉस्टिंग शीट से ही डिफाइन किया जाता है. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक्स डेट भी दिखा है या किसी लाइन आइटम को सेलेक्ट करके मैं ओवरहेड रेट देखूं तो नेगोशिएशन नॉट पॉसिबल. ओके. सो कंट्रोलिंग एरिया आई विल यूज. Okay, 1000 I will use. Here you can see they have assigned something from this cost element to this cost element for this material. Okay, overhead rate. Do you want? No, I think there is something. They have assigned some cost element from this cost element to this cost element. So this is the totally FICO configuration activity. Okay, so I'm going back. After that, we will go through the costing variant. So you can see here, it is our standard one. PM01 is our
from plant maintenance perspective, PM01 is our costing variant. And whenever we require to assign costing variant, we will use PM01. Okay. So we will take a standard one, and I will click on this one, and I will go for the detail check. So here you can see costing type, variant valuation, whatever they have maintained, you can see here. Okay. So it is a totally standard things, and it is maintained by SAP. Okay. So I'm not going to change anything in PM01. I'm only adapt it. After that, I will go for valuation variant. Here we will check. There are different type of valuation variant, and all the settings are standard things. Okay, we will not do any changes because it is a totally related to costing things. Okay, after that I will go for assign costing parameter and result analysis key. So here we will analysis and we will assign. So suppose that yesterday I had assigned some order type as a APM1. Okay, so I will go through the same one, and I will select this one, and here I will assign my planned variant. Okay, calculation as a PM01, and actual variant calculation will be PM0. After that, press it and save it. This is how I had assigned costing variant with my maintenance order type. What is the result analysis key? We'll check. There are different type of things, but I will not go for the this one. Okay, I will only go through this activity. If you want, you can check for PM1. In same way they have assigned for PM1. In PM2, in the same manner they had assigned, and PM03 in the same manner they have assigned. So for all the order type, they have assigned as in a same manner. So no need to worry and go for back. Okay. Again, I will go to check next configurations. So मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना अवेलेबिलिटी चेक फॉर मटेरियल पार्ट्स एंड कैपेसिटी, ये टोटली देखिए क्या होता है, ये मटेरियल के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब सपोज दैट आप कुछ जा रहे हैं, आप सपोज दैट MM01 से मैं मटेरियल क्रिएट करने जा रहा हूँ। ओके, सो आई विल चूज एज ए मैकेनिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड आफ्टर दैट ESRA स्पेयर्स। ओहो, ड्यू टू सम नेटवर्क इशू इट इज डिस्कनेक्टेड। ओके, suppose that I'm going to create one spares. Okay, so service spare part I'm going to create. Okay, press enter. Okay, okay, I will take another one. Okay, this one I will take. After that I will select on everyone and go for it. No, 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 I will go for basic data 1, basic data 2, purchasing. This please see, please focus on it. It is the way how to create a material. I'm showing the same thing. So this is how we can create. So I will take 1000 plant, and storage I will take as a, from here I will search. Uh, I will take as a, I will try to search as a spare part. One second. Okay. So
when we will go through the MRP one. So I will go for MRP one. So here you can check MRP type. Okay. So in MRP one and MRP two, purchasing group required MRP type. So you can check here. MRP का क्या है? टाइम फेज प्लानिंग है, टाइम फेज विदाउट ऑटो रिकॉर्ड पॉइंट है, MRP फिक्सिंग टाइप वन है। यहाँ ये क्या होता है, यही मटेरियल अवेलेबिलिटी के लिए MRP हम मेंटेन करते हैं। ओके। सो MRP अगर हम कर देंगे नो प्लानिंग है। ओके। एंड नेक्स्ट मूव फॉर नेक्स्ट वन एंड अवेलेबिलिटी चेक इन थ्री। Here you can see availability check. If I will assign anything in this no check or individual requirement, then if we'll create maintenance order, अगर हम maintenance order create कर रहे हैं और ये material यूज कर रहे हैं, तो वहाँ मेंटेनेंस ऑर्डर में एक टैब होता है जिससे हम इसका अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, ये फंक्शन आप एक्टिवेट अपने सिस्टम में फंक्शन एक्टिवेट भी कर सकते हैं और एक्टिवेट नहीं भी कर सकते हैं। इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट बिजनेस। एज पर देयर बिजनेस वी कैन चेक, बट मैं क्या करता हूँ, मैं जब कभी भी क्रिएट करता हूँ मैं नो चेक ही लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर अवेलेबिलिटी चेक यस या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ तो मेरे को बार बार एरर देता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएशन। मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएशन के अगेंस्ट में देता है कि मटेरियल के फॉर दिस मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक, अवेलेबिलिटी नॉट चेक। ओके। एंड सिस्टम स्टेटस भी दिखाता है कि अवेलेबिलिटी आपने चेक नहीं किया। ड्यू टू दिस रीजन आई डोंट वांट टू यूज दिस थिंग, सो ड्यू टू दिस रीजन आई विल यूज एज ए नो चेक। सो सेम कॉन्सेप्ट है वहां पे कि अवेलेबिलिटी को चेक करना है कि नहीं करना है। और दिस इज हाउ आई हैव क्रिएट वन मटेरियल ट्रिपल टाइम 5 ट्रिपल 4 टाइम 0 475। ओके। तो इसलिए ये जो सेटिंग्स होती है, अवेलेबिलिटी चेक फॉर मटेरियल एंड पीआरटी एंड कैपेबिलिटी, दिस इज फॉर द, अगर मैं यहाँ पे रूल्स क्रिएट कर देता हूँ तो वो सिस्टम क्या करेगा, वो उसको चेक करेगा। सो मैं आई एम गोइंग थ्रू द सेम वन, डिफाइन चेकिंग रूल। तो देयर आर थ्री मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रूल इज चेकिंग वन, चेकिंग टू और चेकिंग थ्री। ये स्टैंडर्ड है, इसके अलावा हमारे यूज में कुछ भी नहीं है, ये तीन होते हैं और ये ही इसको आगे चल के हम असाइन करेंगे। ओके। फिर उसके बाद डिफाइन स्कोप ऑफ चेक। ओके। सो ये स्कोप ऑफ चेक तीन तरह का होता है, डेली रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, या किस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर एक प्लांट मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए इसको, तो ये कैन यू कैन सी हियर, ये देख सकते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आप चेक करेंगे, और ये चेकिंग रूल किसके लिए होगा, पीएम प्लांट मेंटेनेंस के लिए। एंड यू विल हैव टू क्लिक टिक ऑन दिस चेक बॉक्स इन स्टॉक एरिया, इंक्लूड सेफ्टी स्टॉक, स्टॉक इन ट्रांसफर इंक्लूडिंग क्वांटिटी इंस्पेक्शन स्टॉक, रिप्लेसमेंट लीड टाइम check box. Okay, so you will have to click tick because it is a standard one. Okay, I am not going to change anything, I will take the same one. Okay, सिस्टम विल ऑटो रीड। ओके, सिस्टम विल ऑटो रीड दिस थिंग। इफ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं दूसरे तरह का टू नंबर का मतलब ये अवेलेबिलिटी चेक करूं, तो सेकेंड वाला भी मैं दिखाता हूं आपको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट में आएंगे आप। सो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट में ये देखिए, वो फर्स्ट वाले से डेली रिक्वायरमेंट से थोड़ा डिफरेंट होगा, बट नेम विल बी डिफरेंट। ओके, नेम विल बी डिफरेंट, जैसे इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट एंड यहाँ प्लांट मेंटेनेंस, तो यहाँ अवेलेबिलिटी चेक टू हो जाएगा,
क्योंकि आपने यहाँ दो तीन तरह की अवेलेबिलिटी चेक में बताया था। फर्स्ट इज अ डेली रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज अ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड इज अ रिप्ले रिप्ले लीड टाइम। ओके, सो और उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये अवेलेबिलिटी डेली रिक्वायरमेंट पे है या इंडिविजुअल मटेरियल के लिए आप यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिपेंड्स करता है मटेरियल और बिजनेस के ऊपर। और थर्ड वाला मैं दिखा रहा हूँ, थर्ड वाला देखिएगा। थर्ड इन्होंने नहीं डिफाइन किया है, थर्ड डिफाइन नहीं किया ये, ठीक है। थर्ड आप चाहते हैं तो न्यू एंट्री पे करके थर्ड भी कर सकते हैं। 03 यहाँ कर दीजिए, यहाँ पीएम डाल दीजिए, यहाँ इस पे क्लिक टिक कर दीजिए, इन पे सब पे क्लिक टिक सॉरी ये सब टिक कर दीजिए, ये चेक बॉक्स कर दीजिए, एंड देन सेव कर दीजिए। ये क्या बोलता है, ओके, ये ओके, दिस इज हाउ वी हैड, ये हमने क्या किया, असाइन कर दिया। एंड चेक और नॉट चेक, तो ये हम इसको ले लेंगे ए, ठीक है, और ये सेव कर देते हैं। एंड देन दिस इज हाउ वी हैड क्रिएट डिफरेंट अवेलेबिलिटी चेक। तो इस तरह से हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं और अवेलेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं। और ये अवेलेबिलिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली रीड करता है मटेरियल को और मेंटेनेंस ऑर्डर को। सो एंड वी विल गो थ्रू द न्यू वन, और वी विल चेक फॉर 1000 प्लांट, वन ऑर्डर टाइप APM1, प्रेस इंटर। तो इसमें है ही नहीं, आई विल गो फॉर द दिस न्यू वन, और यहाँ मैं क्या करूँगा, प्लांट में 1000 यूज करूंगा, ऑर्डर टाइप मेरा APM1 यूज करूंगा। अवेलेबिलिटी चेक किस तरह का करना है आपको, सो आपके पास तीन तरह की अवेलेबिलिटी है, चेक अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑर्डर क्रिएशन और चेक ड्यूरिंग ऑर्डर रिलीज। तो ऑर्डर क्रिएशन के अगेंस्ट में मैं लूंगा, तो ये इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा, स्टेटस चेक, नो चेक, और ये क्या है, फिर चेकिंग रूल क्या है, आपने चेकिंग रूल क्या क्रिएट किया था, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चेकिंग 1, चेकिंग 2, चेकिंग 3 कौन सा था, चेकिंग 1, ओके। और we will go through the next one, 1 second, is there any PM rule or what, this one, okay, we will check PM rule. After that we will go through the checking rule as a status check first, press enter and then save it, okay। We will check for the standard one कि PM1 के लिए इन्होंने कैसे किया है। तो आई विल क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी द सेम वे, बट दे हैड नॉट क्लिक ऑन मटेरियल अवेलेबिलिटी, okay, and here they had check as a 2, check during order release. So they have taken different one, and even they had choose checking rule as a PM. After that release material and checking rule 01, okay. So in the same way, I also oh sorry, define infection control. I will go through 1000 and APM1 एंड फॉर, क्योंकि मेरा APM भी करेक्टिव मेंटेनेंस है, तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूंगा, नो चेक पे क्लिक करूंगा, और नो मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक ड्यूरिंग व्हेन सेविंग ऑर्डर, यहाँ मैं कंपोनेंट चेक टाइप क्या लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। 1 second, I am going to define new one for the same plant and for the same order type. Here I will check availability as a 2, okay. After that I will not click on no check, status check or checking availability. Here I will choose as a checking rule as a PM. After that I will take release material as a 1, okay. After that I will click on a status, sorry, checking rule as a 0. I will search up from here state check, okay.
After that I will take as a PRT release 2 okay. After that overall profile I will select SAP, or I think it is not okay. Okay, 2 FGCG. FCG 013. Okay. I will take capacity availability check. After that release order I will take 1, press enter, and without transaction release you must define checking rule and material release. Okay, so availability check will be 2, will not taking as a 1. User will define. Okay, so checking rule 0, 1 and 2. Okay, I will remove it. I will choose as a 2. We will have to define something. I think something is missing from uh, PM, sorry, from side. Order type will be PM01. I will go through the same. You can see here, for each order type, they have assigned 2 different type of checking rules. Okay, first one and second one. For second, for PM02, second one and second one. So we will go through the each one. Here you can see uh, they have taken availability check as a P. First of all, they have taken. I will click on this. Oh, so here you can see 1000. They have taken plant as a 1000, order type PM01, and availability check will be 1. Okay, they have taken as a no check and check material availability during saving order. After that, checking rule will be PM, and component check type they have not taken anything. Collective conservation they have taken 1. After that, they have taken checking rule as a 02. After that, they have not taken anything. If we will go through the PM01 and second rule, checking availability during order release, in the same way they have taken checking rule as a PM and release material 1. User decide on release if part are missing. Okay, and checking rule be 01, and part release to part PRT release be 2. After that, overall profile and release order they have taken. So in the same manner we will define it for remaining 4 different type of order for PM2, PM03, and PM04, PM05, and PM06. For each order type we will define in the same manner. Okay, so I'm moving on the next. So this is how we had defined, and after that I want to tell one thing. ऑर्डर के लिए भी हम व्यू प्रोफाइल डिफाइन कर सकते हैं बेसिक व्यू ऑर्डर में, लेकिन बेसिक ऑर्डर व्यू, लेकिन ये ऑर्डर के लिए यहाँ पे बेसिक ऑर्डर व्यू में यहाँ देख रहे हैं ना, ये डिफाइन व्यू प्रोफाइल एंड असाइन व्यू प्रोफाइल टू ऑर्डर टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं व्यू प्रोफाइल, और हम स्टैंडर्ड 1 के थ्रू जाते हैं, क्योंकि जो ये PM01 का जो इनिशियल है ना, इसके थ्रू अगर हम जाके देखते हैं, सॉरी, ओके, आई विल हैव टू गो बैक. I will go for initial negation. They have defined in different manner. In I think I will go for
PM profile for maintenance order for fleet. Okay, tabs. They have not taken anything. So व्यू प्रोफाइल, जो व्यू प्रोफाइल क्या होता है मैं भी बता देता हूँ. IW2030, सॉरी, ऑर्डर के लिए व्यू प्रोफाइल क्या होता है. ओके, IW31. So when I will click as a PM02 and equipment take as a EA, so this is the view profile. Header, operation, component, cost, partner, object, additional data, location, planning and control. These things are come from the view profile. ये view profile के थ्रू होता है. तो व्यू प्रोफाइल हम ऑर्डर के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं. नो नीड, हम स्टैंडर्ड वन से ही चलते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड वन से ही चलते हैं. हम कभी व्यू प्रोफाइल नहीं डिफाइन करते. अगर मैं इसके थ्रू जाता हूँ तो देख रहा हूँ कि ये लोग ने किसी डिफरेंट वे में किया है. ये टैब को एक्टिवेट किया है, फिर आइकन टास्क का यहाँ ऐड किया है. यू कैन सी आइकन टास्क, टास्क आइकन यहाँ इन्होंने कुछ ऐड किया है, लेकिन इट इज नॉट डिफॉल्ट व्यू प्रोफाइल. ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट शोइंग. सो हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम नहीं करते हैं. हम स्टैंडर्ड वन के थ्रू ही फॉलो करते हैं. Assign view profile to order type. We will check which order view profile is assigned with. So for PM order type PM01, planning plant will be 1000 and activity category. No, okay, I will continue. Here we can check, maybe they have not assigned. In same manner they have assigned for the all order. Okay, I will go for create new one and I will check. Okay, PM01, planning plant will be 1000 and profile will I will take as a PM001. Okay, and that's it and back. So I had create for 1000 and save it. Okay, this is our settings, and again I will try to check it how it is coming or how it is showing. बेसिकली हम स्टैंडर्ड वन को यूज करते हैं. अभी हमको जरूरत नहीं पड़ता कि हमको इसको चेंज करें. इन द सेम मैनर इट इज कमिंग. ओके, इट इज कमिंग इन द सेम मैनर. इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है. ओके, सो नो नीड टू चेंज एनीथिंग. एक्चुअली इतना से मतलब जो स्टैंडर्ड है उससे काम हो जाता है, लेकिन जब कुछ इन्हेंसमेंट करना है, कुछ नई चीजें ऐड करना है, देन यू कैन डू. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ऐसा ही करना है. आई एम गोइंग बैक. उसके बाद जो नेक्स्ट ये एडिशनल है, इसको मैंने हाईलाइट किया था. ये एडिशनल चीजें हैं, इसको वो ऐसा नहीं कि इसको करना करना मैंडेटरी है. इफ यू वांट यू कैन क्रिएट, इफ यू डोंट वांट don't go change, don't go change. After that we will go through the general data. So here we will define moment type for material reservation and account assignment category. Okay, yesterday I think I had discussed with you. So in general data, wait, what is, yes, this is my general data. I will teach it. Default value for component item category and define moment type. So you can see already they have assigned for GR and GR reverse. Suppose that you are going to do goods received against purchase order. So GR will in for this GR moment type will be 101 and reverse will be 102. And for maintenance order 261 moment type and GR reverse will be 262. In the same manner they have assigned for the each and every one. Okay, they have assigned. So no need to do change any, because so many things before it, so many things are standard. Okay, अगर आपको आइटम कैटेगरी मटेरियल के लिए 1000 प्लांट के लिए आपको आइटम कैटेगरी एन नहीं डिफाइन किया, देन यू कैन डिफाइन इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब समवन हैव डिफाइंड. यस, एंड यू इफ यू वांट ऑल टाइप के मटेरियल के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं. इन्होंने तो नहीं किया है इन द सेंस कि यहाँ देखिए मटेरियल का जब टाइप की बात करते हैं तो यहाँ 500 एंट्रीज है, लेकिन
ये इतना कस्टमाइज कर दिया है, इतना मतलब यहाँ से हटा दिया, मतलब इन द सेंस इस सारी चीजों को चेंज कर दिया है। यहाँ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल स्टार का एक मार्क आता है सबसे पहले ही, जब आप इसको ओपन करिएगा यहाँ स्टार मार्क आएगा, तो स्टार मार्क एंड मटेरियल टाइप डिस्क्रिप्शन विल बी ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, देन you will allow for the all type material, after that you will have to maintain plant and item category, but इसमें नहीं है, इस वजह से इन्होंने blank रखा है, so no need to worry, only change in the such way. After that define account assignment category document type for purchase document, so from here you can define, otherwise PM MM guy will do it. So order category आपका 13 रहेगा and it is a standard, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करने जा रहा हूँ। जब भी आप मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑर्डर के पीआर क्रिएट करेंगे तो उसका अकाउंट असाइनमेंट ये होगा, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी प्रोजेक्ट क्यू होगा, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी सर्विस ऑर्डर ई होगा एंड सेल्स डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट डी होगा। ये स्टैंडर्ड थिंग्स है, मैं इसमें कुछ चेंज करने नहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। क्यू का क्या मतलब है, नेटवर्क थर्ड पार्टी नहीं, प्रोजेक्ट मेक टू ऑर्डर, सो ये आपका अकाउंट असाइनमेंट हो गया। यहाँ ई का क्या मतलब है, यहाँ आप ई का क्या मतलब है, इन द सेंस कस्टमर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, here you can see and individual customer settlement project, so I'm not going to change, but only we will review these settings, after that we will go for the next things, priority। तो ये प्रायोरिटी क्या होता है, प्रायोरिटी मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रायोरिटी हम मेंटेनेंस ऑर्डर या नोटिफिकेशन में कि उसका क्या प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। ओके, सो जनरल डेटा में ही प्रायोरिटी यहाँ पे दिया है, डिफाइन प्रायोरिटीज एंड आई विल एग्जीक्यूट, आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द, सो पीएम स्टैंडर्ड वन है, पीएम को किसी ने एसएपी सिस्टम ही कर देता है एंड इसी चीज को हम क्या करते हैं आगे चल के डिफाइन करते हैं, मतलब पीएम इज स्टैंडर्ड, पीएम प्रायोरिटी इज स्टैंडर्ड थिंग, नो नीड टू चेंज। अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह का पीएम नया क्रिएट करके फिर असाइन कर देंगे, देन आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ईच ऑर्डर टाइप के लिए अगर पीएम ऑर्डर टाइप असाइन करना है तो आप पहले ये देखिए कि पीएम ऑर्डर टाइप का क्या यहाँ प्रायोरिटी असाइन है। कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रिलीज इन 1 डे में होगा एंड वेरी हाई होगा प्रायोरिटी अगर 1 लेते हैं तो, एंड 4 मतलब 2 वाला जो प्रायोरिटी लेते हैं तो उसका रिलीज इन आपका 4 डे होगा और ये हाई होगा, लेकिन ये 4 डेज में होगा। ये मीडियम जो होगा वो 14 डेज का होगा, ये 30 डेज का होगा। तो यू कैन चेंज दिस थिंग एज पर योर बिजनेस प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 2 3 या इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन आपको ये इसको ऐसे रखना है, ऐसा नहीं कि इसको चेंज कर देना। ये क्या होता है ना, बहुत लोग आते हैं चेंज करके चले जाते हैं। अब ये देखिए एरर देने लगा हमको, आई विल ट्राई टू सेव इट, इट विल बी सेव। अब ये 1 2 3 इसका वेरी हाई है मीडियम है लो है, अब ये डेज में है हावर में है, लेकिन इन्होंने किसी ने कस्टमाइज कर दिया है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड अगर सीएम के लिए देखिए तो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये सीएम के लिए 4 5 डिफरेंट टाइप के प्रायोरिटी और यही है। तो वो रिलीज इन और रिलीज स्टार्ट ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू शो यू इन डिफरेंट सिस्टम, नो नीड टू वरी। आफ्टर दैट डिफाइन प्रायोरिटी टाइप फॉर ऑर्डर, अगर आपके पास भैया कोई सर्वर होगा ना आप उसमें भी देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज दैट APM1 is my maintenance order, so here I will assign my PM priority, press enter and save। अगर न्यू एंट्री करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, टाइप आपका ऑर्डर टाइप रहेगा, यहाँ नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, पीएम पीएम टाइप प्रायोरिटी डालेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो PM1 के लिए भी सेम ऐसे ही असाइन किया है, PM02 के लिए भी सेम असाइन किया, तो वही असाइनमेंट है और इसका ये डिफाइन है। पहले आपने प्रायोरिटी टाइप दिखा, प्रायोरिटी टाइप डिफाइन किया PM, आफ्टर दैट ईच प्रायोरिटी टाइप को पहले आप देखा आपने कि ईच प्रायोरिटी का क्या यहाँ वैल्यू है, 1 2 3 4 एज इट इज मैंने रखा। या आप ये कर सकते हैं कि वेरी हाई है तो उसका 1 होगा, उसके बाद आप ये 2 ले सकते हैं, फिर इसका हो सकता है कि आप ये 5 भी ले सकते हैं और इसको 10 भी ले सकते हैं। ये आपको समझना है कि इस कैसे ये सिस्टम बिहेवियर क्या है इसका, एंड सेव इट एंड गो बैक। आफ्टर दैट पीएम टाइप की प्रायोरिटी को आप अपने ऑर्डर टाइप के साथ असाइन कर देंगे बस। एंड जब भी आप क्रिएट करिएगा ऑर्डर टाइप वो आपको यहाँ दिखेगा। मान लीजिए सपोज दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट ऑर्डर टाइप, हियर यू कैन सी
पीएम प्रायोरिटी। तो मैं मेंटेनेंस ऑर्डर का मेरा प्रायोरिटी क्या है, मैं हाई लूँ, लो लूँ, मीडियम लूँ, ये। लेकिन बट मुझे जैसा लगता है कि इस सिस्टम पे कोई ज्यादा इम्पैक्टेबल नहीं है, इससे कोई सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं आता है। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर क्रिएट सिस्टम कंडीशन फॉर ऑपरेटिंग कंडीशन। सो मैं यहाँ से देखिएगा, ये यही पीपी का यही इंटीग्रेशन है। रिजर्वेशन बाय पीएम, तो सिस्टम इन ऑपरेशन और ऑपरेशन दिखता कैसे है। अब सपोज दैट you are going to create one purchase or sorry maintenance order. Here you will use equipment number. Here you can see system condition. ये देखिए सिस्टम कंडीशन ऑपरेशन है या इन नॉट ऑपरेशन है, टेस्ट है, द इक्विपमेंट नॉट ऑपरेशनल या इक्विपमेंट ऑपरेशनल, ये आप सारी चीजें असाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉट इन ऑपरेशन ये रहता है, ऑलवेज ये रहता है। आप चाहें तो इन ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ओके, बस यही और कुछ नहीं। न्यू एंट्री करके बहुत लोगों ने क्रिएट कर दिया, लेकिन स्टैंडर्ड केवल दो ही होता है, एक जीरो एक वन। ओके, आफ्टर दैट एक्टिवेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर करंट स्टार्ट एंड डेट। सो एक्टिवेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर करंट। तो प्लानिंग प्लांट मेरा 1000 है, तो 1000 के लिए मैंने स्टार्ट डेट और जो डिफॉल्ट करेंट डेट, मतलब सिस्टम के करेंट डेट को ही जब आप मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो यहाँ करेंट डेट आज का ही आ जाएगा। यही मैं बता रहा था, ये देख रहे हैं ना, जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो बेसिक स्टार्ट डेट, बेसिक फिनिश डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। देखिए मैं जैसे ही फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेंटेनेंस ऑर्डर, देखिए ऑटोमेटिक आज का डेट लेगा, क्योंकि ये 30 सितंबर है, तो ये 30 सितंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ करेंट डेट को एक्टिवेट किया है। अगर मैं नहीं एक्टिवेट करता हूँ तो हो सकता है कि वो ना ले, कल के डेट में ना ले। जिसे मैं ट्राई करता हूँ, आई एम गोइंग टू check it system is working or not. Sometime it is working, sometime it is not working, so it is not easy to say about it. It is a totally depends on system. देखिए बेसिक स्टार्ट और बेसिक फिनिश ये हट गया। अब वी विल हैव टू पुट मैनुअली। सो दिस इज द थिंग्स, एक्टिवेट डिफॉल्ट फॉर दिस वन एंड save it. Again I'm going to back, and again I'm going to create. Okay, I will choose again equipment number, and oh, and press enter, and you can see automatically system have taken. And here you can assign priority. Okay, here you can assign system status 0 or whatever. Okay, not in operation, because when you are creating maintenance order, system will be in breakdown condition. ओके, आफ्टर दैट डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू फॉर यूनिट ऑपरेशन। सो यूनिट ऑपरेशन के लिए डिफॉल्ट वैल्यू। सो देखिए मेरा प्लांट जो है 1000 है, और मेरा जो भी ऑपरेशन होगा वो वर्किंग हावर्स में होगा, इसीलिए आई विल असाइन एज ए हावर। वी आर वर्किंग एज ए हावर। अब अगर ये ऑपरेशन में देखेंगे तो आपको हावर्स दिखेगा। यहाँ देखिए, आप अगर यहाँ चेंज कर दीजिएगा, अगर आप यहाँ डे में ले लीजिएगा देन इट विल चेंज, डे में ले लीजिएगा तो इट विल चेंज मे बी और नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट आई विल चेक। बट मैं तो HR ही लेता हूँ। अब आई एम अगेन गोइंग टू क्रिएट दिस वन, दिस मेंटेनेंस ऑर्डर, एंड हियर वी कैन चेक, एंड नाउ आई विल गो फॉर चेक। यू कैन चेक ना, डी इज चेंज। ओके, ड्यूरेशन विल बी चेंज, duration will be calculated by system in day. Okay, I think it is not right combination, so I will change this thing, because here I had taken as a D na. After I will check and save it, again go back, I will go back, and again I will take equipment, press enter, and I will go through the operation. Here you can check unit of work and unit of duration will have changed. Okay, ये चेंज हो गया है, ये पूरी तरह से चेंज हो गया, लेकिन अगेन आई विल डू इट द सेम। मैं इसको HR में कर दूंगा, HR वर्क कर दूंगा, अर्न सेव कर दूंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। हम कोई काम SAP में HR हावर्स में करते हैं, हमारा वर्किंग हावर्स में होता है। एंड नाउ आई विल गो फॉर द चेंज, एंड ऑपरेशन में आप देखेंगे तो ये चेंज होके HR आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच भैया, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। वी विल कनेक्ट टुमारो, बाय, टेक केयर। आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कनेक्ट मी।